So, hello everyone. So, I am on another trip, and this one is also solo. So, this time I'm going to South India, and especially I wanted to visit Rameshwaram. So, this trip is to Rameshwaram, then from there I'll be going to Kanyakumari, and if I'll get the time, I'll also go to Coimbatore, wherein my destination will be Adiyogi. So basically I'm a Shiva Bhakt, so this entire trip is going to be to meet Lord Shiva, starting from Rameshwaram and all. So I've started my trip today. So here from Pune I'll be flying to Chennai. So I am traveling to Chennai airport now, and it is so my flight trip to see, and as the solo trip, so I'll share the adventures as well. So be connected. We'll meet tomorrow. Hi, I'm in Chennai Metro now, and the destination is Chennai Egmore Station. Metro is also being developed very well. So I came Chennai around 7 or 8 years back, and a lot of changes I have seen in Chennai. I didn't go much to Rome. I was resting at hotel and then go back to Marina Beach, and then finally I'm going to Egmore Station, from where I catch my train to Rameshwaram, my destination. So stay connected. We'll update you about more about that, how you can travel. It's hardly 10 rupees or 10 to 20 rupees travel by public transport, and prefer public transport rather than going to auto or maybe Ola, and that is very good, very convenient. There is no rush over here, and see you in Rameshwaram. Bye-bye. So I am at Chennai Egmore Station now, and the train will depart here from this Chennai Egmore Station at 7:30 PM. 7:30 बजे ट्रेन निकलेगी. ट्रेन का फेयर इज़ क्वाइट रीज़नेबल. अगर आप एसी से थर्ड एसी से सफ़र करते हैं तो 1000 रुपये के आसपास है. स्लीपर का किराया कुछ 370 रुपये के आसपास है. तो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली. यू वांट टू गो बाय एसी और स्लीपर स्टेशन, दोनों ही अच्छे हैं. ये आ गया पम्बन ब्रिज हमारा. पम्बन ब्रिज, वन ऑफ द फेमस आई वुड से प्लेसेस in Rameshwaram. If you are coming here, people prefer to enter Rameshwaram by train, because this gives a different feeling while passing through this bridge. चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है. सामने जो ब्रिज है ये रोडवेज का ब्रिज है. So and they are making another bridge for railways. तो अदर साइड में दिखा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी. तो but still they are using this bridge, quite old, more than 100 years old, and still operational. That's an amazing thing, and it feels कि हाँ यार अब कुछ तो नया हमने किया है. I was also waiting for so long for this journey, of course, रामेश्वरम के इस ब्रिज पे जाने के लिए, and finally the day has come. तो सुबह का समय है, almost 7:45 का टाइम हो रखा है, एंड सुबह सुबह धूप निकली हुई है. मस्त पानी दिख रहा है नीचे, चारों तरफ पानी ही पानी है, एंड ना आगे का छोर दिख रहा है ना पीछे का छोर दिख रहा है. इतना लंबा ब्रिज है ये, एंड इवन ट्रेन टेक्स ऑलमोस्ट 10 to 15 minutes टू पास थ्रू द एंटायर ब्रिज. और दिस इज़ द अदर साइड. दूसरा साइड है जहाँ पर रेलवे एक और ब्रिज बना रहा है फॉर ट्रेन, एज दिस ब्रिज इज़ ऑलमोस्ट 100 years old. शायद कुछ दिनों बाद ये ब्रिज यूज़ नहीं किया जाएगा, ऑपरेशनल नहीं होगा. तो एक नया ब्रिज बन रहा है यहाँ पर. अभी आप देख सकते हैं सामने पत्थर भी दिख रहे हैं नीचे, पानी के नीचे. बट देखिए चारों तरफ दूर दूर तक जहाँ देख रहे हैं आप, पानी ही पानी है, और आप ट्रेन से वो एरिया क्रॉस कर रहे हैं. क्या दिमाग लगाया होगा उस समय भी, व्हेन पीपल हैव मेड दिस ब्रिज. कितना एफर्ट से ब्रिज बनाया होगा. It really feels great when you are passing through this. Now we are about to reach to Rameshwaram station. So here comes Rameshwaram station finally. It's not so big, but that's the last stop for any train which is coming to this route.
ये लास्ट स्टेशन है, लास्ट स्टॉप है, एंड यहाँ से हमारी जर्नी तय करें। सो फाइनली रीच्ड एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। इट्स 8:30 by my watch, and now the journey begins, and I'm very happy and excited. I've just the train has just passed through this famous Pamban Bridge, and it was amazing to see the view, especially from train. I can't explain. I'll definitely show you in the video and you must have seen by now. So now heading towards the Jyotirling Ramalinga temple, and I'll update you what all restrictions are there, how you should go, what all things, procedures to be done, and I'll upload you in the video ahead. So be connected, I'll update. Now I am on my way to temple. स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से मंदिर तक कुछ तो 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एंड ऑटो इज़ चार्जिंग यू 50 रुपीज़, सो आई गेव 50 रुपीज़ टू रीच दिस प्लेस। एंड ऑटो वाले आपको वेस्ट गेट के सामने छोड़ते हैं। तो मंदिर के 4 गेट हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एंड वेस्ट गेट के सामने मंदिर के हमने छोड़ा है उसने। वेस्ट गेट के बिल्कुल सामने ही मेरा होटल जो मैंने लिया है एक रात का। इट वॉज ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल। आई पेड 800 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स स्टे। तो यहाँ पर ऐसा भी सिस्टम है कि आपको कितनी देर के लिए चाहिए। सम पीपल कम इन मॉर्निंग एंड लीव इन द इवनिंग, तो वो 12 घंटे के हिसाब से लेते हैं, फिर आपका चार्जेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ से चला हूँ, ये सामने आप देख सकते हैं, ये है नॉर्थ गेट। तो वहाँ से चल के मैं नॉर्थ गेट तक आया हूँ, क्योंकि इसके सीधे जाकर ही मुझे आगे अग्नि तीर्थम पे जाना है। सो अग्नि तीर्थम इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ पर आपको बाथ लेना है, जब सी साइड एरिया, वहाँ पर आपको बाथ करना, उसके बाद ही आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। तो अभी आई एम गोइंग टू अग्नि तीर्थम। सो दिस वाज द नॉर्थ गेट ऑफ टेम्पल। आसपास का एरिया पूरा दुकानें वगैरह सब कुछ है आपको। इवन लॉकर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप रूम नहीं लेना चाहते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आपको वापस जाना है, अगर यू डोंट इवन नीड टू टेक रूम, तो आप लॉकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ लेते हैं ये लोग बैग और मोबाइल रखने के लिए, क्योंकि मोबाइल इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। सो मोबाइल ऑल्सो यू हैव टू कीप इन लॉकर। और ये हम आ गए हैं अभी अग्नि तीर्थम पे। काफ़ी मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ से। ये 4 गेट बने हुए हैं, सामने पूरा सी दिखता है आपको। ये अग्नि तीर्थम का स्थान है। यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, बट यू विल हैव टू गो एंड टेक अ डिप इन वाटर, एंड उसके बाद ही आप मंदिर में जाएंगे। देख सकते हैं आप, पूरा समुद्र का एरिया है। अग्नि तीर्थम में अभी स्नान हो गया है। नाउ आई एम अगेन गोइंग बैक टू द टेम्पल गेट्स। दिस इज़ अगेन द नॉर्थ गेट रोड, नॉर्थ गेट का रोड है ये। तो अभी मैं होटल जाऊंगा, थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, और आई विल कीप 1 स्पेयर क्लोथ एज वेल विथ मी। थोड़ा सा एक स्पेयर क्लोथ भी ले लूँगा अपने साथ में, क्योंकि अंदर 28 कुंड है। उन 28 कुंड में स्नान करने के बाद ही आप मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। और 28 कुंड का एक ऑफिशियल फ़ीस है 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ का रिसीट कटेगा आपका। उसके बाद आप उन 28 कुंड में स्नान कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वहाँ पर लोग हैं जो कुंड में से पानी निकालते हैं और आपके ऊपर डाल देते हैं। तो दिस इज़ अगेन नॉर्थ गेट, जहाँ से मैं एंट्री करूँगा। सो गोइंग टू दी टेम्पल। Although mobile is not allowed inside the temple, but from the west gate entry there is a small area जहाँ पर कुछ दुकानें हैं, शॉप्स हैं बेचने के लिए, लाइक नो शंख हो गया, मूर्तियाँ हो गई, वो सब बेचने, थोड़ी सी एक शॉपिंग एरिया है। तो वहाँ से व्हेन यू मेक एन एंट्री तो ज़्यादा चेकिंग नहीं करते हैं। तो आई वॉज रोमिंग इन दी इवनिंग, और मैंने देखा कि कुछ एंट्री नहीं है। मेरे मोबाइल जेब में मोबाइल भी था, सो आई एंटर्ड एंड दैट्स व्हाट आई कुड
videograph these mesmerizing sceneries I would say. सारे पिलर्स जैसे बोलते हैं, पहले मैंने भी गूगल पे काफ़ी रिव्यूज़ लिए थे, मैंने देखा था सभी पिलर्स वैसे ही एक ही लाइन में हैं. बहुत ही mesmerizing व्यू है अंदर का. फॉर्चुनेटली आई कुड कैप्चर एंड आई कुड शो यू ऑल दिस. तो ये बहुत ही mesmerizing व्यू है. सारे पिलर्स एक ही लाइन में हैं एंड आपको अलग ही फील होगा. तो ये अभी दैट्स वेस्ट गेट है. सामने से मंदिर में दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि सिर्फ भीड़ बहुत कम थी. हार्डली इट टुक मी 1 आवर फॉर एंटायर दर्शन. 1 घंटे में पूरे दर्शन हो गए. मंदिर के पास ज़्यादा भीड़ नहीं था. मंदिर के VIP टिकट भी होती है 100 रुपये की. आप वो 100 रुपये की टिकट दीजिए, डायरेक्टली जाके मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं. अदरवाइज़ लाइन भी ज़्यादा लंबी नहीं थी. सो आई पेड 100 रुपीज़ एंड टुक 100 रुपीज़ टिकट और वहाँ से मैंने दर्शन कर लिए. ज़्यादा समय लगा मुझे, मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगा होगा लाइन में पहुँचने के बाद दर्शन करने के लिए. दर्शन के लिए अंदर गर्भगृह में अलाउड नहीं है, बाहर से आपको दर्शन करने पड़ते हैं. आफ्टर दर्शन आई टुक सम रेस्ट इन द होटल एंड देन अगेन लेफ्ट फॉर साइट सीइंग. तो साइट सीइंग के लिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू धनुषकोडी. I earlier thought to hire a bike but again was not able to find some suitable shops पे बाइक रेंट पे मिल जाए. तो ऑटो वाला मिल गया मुझे एंड ऑटो पर्सन हैज चार्ज्ड मी 800 रुपीज़ फॉर ऑल द साइट सीइंग्स राइट फ्रॉम धनुषकोडी टू द अदर पॉइंट्स इन रामेश्वरम. So this now I am going to Dhanushkodi. This is also a very good view. If you are coming to Rameshwaram, don't forget to go to Dhanushkodi. रोड है बीच में, दोनों तरफ सागर है. एक साइड बंगाल की खाड़ी है, दूसरी साइड हिंद महासागर है. बंगाल की खाड़ी में यू विल सी इट इज़ यू विल फाइंड हाई करंट इन द वाटर. लंबे लंबे वेव्स आते हैं एंड हिंद महासागर बहुत ही शांत है. दिस इटसेल्फ इज़ अ व्यू विच यू वुड नॉट लाइक टू मिस अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो. तो धनुषकोडी जाइए. धनुषकोडी का जो रोड है वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सीनिक है. एक रोड है, दोनों तरफ आपको समुद्र दिख रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है ऑफ कोर्स. सो धनुषकोडी के लिए एज आई मेंशन दैट ऑटो से जा रहा हूँ मैं. 800 रुपये ऑटो वाले ने चार्ज किए हैं. नॉर्मल फिक्स रेट है 800 रुपये में आपको धनुषकोडी भी घुमाएगा और बाकी के पिकनिक पॉइंट्स भी सभी ऑटो वाला घुमाएगा आपको. यहाँ पर अगर आप सी फूड खाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे होटल्स नहीं बोलूँगा, ढाबे टाइप से हैं. तो आपको लोकल क्विज़िन अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आपको लोकल फ़िश अच्छा सा मिल जाएगा. स्पेशली धनुषकोडी जो गांव है, तो धनुषकोडी गांव पे आपको होटल्स मिल जाएंगे खाने के लिए. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर लास्ट रोड ऑफ आवर कंट्री. सो हियर द रोड इज़ गोइंग टू बी एंड. We have reached to this point is almost 4 or 5 kilometers ahead of Dhanushkodi village. धनुषकोडी विलेज से कुछ 5 किलोमीटर आगे है, 4 किलोमीटर आगे है ये प्लेस जो इंडिया का एंड है. यहाँ से बॉर्डर हमारा ख़त्म हो रहा है, रोड ख़त्म हो रहा है. इट ऑल्सो फील सो ग्रेट कि हम लोग लास्ट पॉइंट तक इंडिया के आ सके हैं. व्यू भी यहाँ से काफ़ी अच्छा है. दोनों सागर आपको मिलते हुए दिखेंगे. यहाँ पर संगम है आगे की तरफ. ये बीच में अशोक स्तंभ लगा हुआ है. यहाँ पर रोड ख़त्म हो रहा है. ये अपना बंगाल की खाड़ी है. यू कैन सी द करंट पानी में अच्छा खासा है. राइट साइड में हम लोग मूव कर रहे हैं. ये हमारा हिंद महासागर है और यहाँ पर ये संगम है. दोनों ही समुद्र मिल रहे हैं, दोनों ही सागर मिल रहे हैं. व्यू बहुत ही अच्छा है. आई स्पेंड ऑलमोस्ट 1.5 to 2 hours to stay here. कि अजब ही फीलिंग थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी. यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. यू कैन हैव सम स्नैक्स एज वेल. नो पाइनएप्पल वाज अवेलेबल, कॉर्न्स आर अवेलेबल. वो भी आप वहाँ पर खा सकते हैं. और कुछ तो साउथ इंडियन में जो मिलता है ना, चाट वगैरह, वो सब भी वहाँ अवेलेबल है. वो सब आप यूज़ कीजिए, खाइए, बैठिए, ठंडी हवा का आनंद लीजिए, व्यू का आनंद लीजिए. एंड आई कुड नॉट सी एनी स्टोन देयर. जैसा बोलते हैं कि पत्थर आपको तैरते हुए दिखेंगे वहाँ पर, ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा. इवन सम ऑफ द वीडियोज़ आई हैव सीन दैट पीपल सेड दैट आपको श्रीलंका दिखेगा वहाँ से.
वो भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से, दो द स्काई इज़ वेरी क्लियर। सो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, बट हाँ व्यू बहुत अच्छा है। एंड दैट्स द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जहाँ तक गाड़ी आ सकती है। काफ़ी सिक्योरिटी एरिया है, ड्रोन्स आर नॉट अलाउड, सो डू नॉट ब्रिंग योर ड्रोन्स। आपको जो भी शूट करना है अपने मोबाइल से शूट कर लीजिए। एंड बेटर इज़ टू स्टे हियर, फील द वाइब्स, विंड एंड एन्जॉय द मोमेंट। अशोक स्तंभ है जो कि प्रतीक है भारत का, यहाँ पर आप वो एंजॉय कर सकते हैं, बैठिए, आनंद लीजिए। तो बॉर्डर के बाद आप वापस आते हैं, तो पहले वो हमें डायरेक्टली बॉर्डर पे ले गया था ऑटो वाला। नाउ दिस इज़ धनुषकोडी विलेज, जहाँ पर रूइंस मिलेंगे आपको। एक स्टॉर्म आया था जिसमें पूरा गांव तबाह हो गया था, इवन एक ट्रेन भी तबाह हो गई थी। ये चर्च का एरिया है, सो यहाँ पर आप आ सकते हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर खाना मिल सकता है आपको, छोटे छोटे होटल्स हैं, नॉनवेज आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है अगर आप खाना चाहते हैं तो। फ़िश स्पेसिफिकली आपको, सी फूड काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो यहाँ से खाना खा लीजिए अगर भूख लग रही है तो। खाना खाने के बाद यहाँ से हम भी निकलने वाले हैं, मैं भी यहाँ खाना खाने वाला हूँ। उसके बाद वी विल गो टू अदर साइट सीन्स। नाउ दिस वी हैव रीच टू विभीषण मंदिर। ऐसा बोलते हैं कि ये युद्ध खत्म होने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक यहाँ पर किया था प्रभु श्री राम ने। तो ये विभीषण जी का मंदिर है, यहाँ पर आइए आप। मंदिर के बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली द रोड विच इज़ कमिंग टू दिस टेम्पल, वो तो बहुत ही मेस्मराइजिंग है। शो यू दिस, ये भी बीच से रास्ता है, दोनों तरफ पानी पानी दिखेगा आपको। एंड दिस लुक्स अगेन सो ऑसम, दोनों तरफ पानी है, बीच में ये रोड है। तो ये विभीषण मंदिर है, विभीषण मंदिर के दर्शन किए हमने। सो बॉर्डर से हम लोग धनुषकोडी आए, धनुषकोडी से ही विभीषण मंदिर के हमने दर्शन किए। ये सब फील करने वाला है बहुत ही, तो आप देखते हैं इसको सामने से, काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम गए कलाम, हाउस ऑफ कलाम, वी मस्ट गो देयर, कलाम जी के घर। उसके बाद श्री राम तीर्थम, यहाँ पर भी गए हमने। यहाँ पर भी कुंड है जिसमें आप थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क सकते हैं पानी वहाँ का लेकर, और उसमें हमने मंदिर में दर्शन किए। ये सब ऑटो वाले के पैकेज में ही इन्वॉल्व था, 800 रुपये में उसने हमें सब घुमाया। ये अंदर मंदिर दर्शन, बहुत से मंदिर में यहाँ लिखा हुआ है कि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, जितना हम कैप्चर कर सके किया हमने। यहीं मंदिर के अंदर आपको फ्लोटिंग स्टोन दिख जाएगा, ये फ्लोटिंग स्टोन है, वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है। कुंड में पानी है, उसमें पत्थर तैर रहा है। उसके बाद हम गए पंचमुखी हनुमान, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर जाने के लिए। एंड देन अगेन गोइंग बैक टू द बीच, रामेश्वरम बीच। दिस इज़ द एंड ऑफ द डे इन रामेश्वरम। यहाँ पर एक शिप भी है जिससे आप साइट सीइंग कर सकते हैं वाटर में। 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप 4 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएँ पॉइंट पर, और अग्नि तीर्थम के पास में ही वो पॉइंट है। Now here is an end of the day in Rameshwaram, my trip. Now I'll go to my hotel, take rest. You can see the ship down there. अब होटल जाऊँगा, रेस्ट करूँगा, and tomorrow I'll leave to Madurai. Now I am on my way to Madurai. So there are two options. You can go either by train or by bus. I opted to go by bus to see this view. And train का टाइमिंग मॉर्निंग सुबह 6 बजे था. So I thought to take some rest. तो मैंने बस प्रेफर किया। बस का टिकट सिर्फ 136 रुपीज़ है, 136 रुपये बस का किराया है। एंड रामेश्वरम से मदुरई को डायरेक्ट बस मिल जाता है आपको। सो आई हैव गॉट द डायरेक्ट बस। किराया भी काफ़ी रीज़नेबल, 136 रुपये, कुछ 125 किलोमीटर के आसपास है, 125 किलोमीटर्स के आसपास। इट टेक्स अराउंड 175 किलोमीटर, सॉरी, and it takes approximate 3.5 hours to reach there. You can again see the view of Pamban Bridge. Now we are going through roadways bridge. So ये जो दिख रहा है हमको पम्बन ब्रिज है, जिससे हमने जर्नी की थी जब हम रामेश्वरम आए थे। काफ़ी मेस्मराइजिंग व्यू है, काफ़ी सूदिंग व्यू है। लोग यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खींचते हैं। स्पेशली इट इज़ क्वाइट फेमस, जब ट्रेन पास होती है तो लोग वहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खींचते हैं। ये दूसरी साइड है, ब्रिज से दिख रहा है हमको। चारों तरफ आप दिख रहे हैं शिप खड़ा हुआ है पूरा।
और पानी ही पानी है। गोइंग टूवर्ड्स मदुरई। रामेश्वरम के दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए, दिन बहुत अच्छा गुजरा, समय भी कम लगा, सारे पॉइंट्स हमने कवर किए ऑटो से। एंड कॉस्टिंग वाज आल्सो रीज़नेबल, 800 रुपये ऑटो वाले ने लिए, 800 रुपये रूम का भाड़ा था। खाना बहुत ही अच्छा था, इवन मंदिर के अंदर ही एक खाने का इंतज़ाम था, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स, जो हम प्रसाद बोलते हैं, बट उसका टाइमिंग है 12 से लेके 3 बजे तक। उस समय पर ही आपको वहाँ पर जाके खाना पड़ेगा। अदरवाइज़ बाहर भी काफ़ी सस्ता है, इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। 60 से 70 रुपये में आप आराम से पेट भर सकते हैं अगर आप साउथ इंडियन खाते हैं तो। सो आई जनरली प्रेफर टू ईट इन द प्लेस वेर एवर यू आर। सो साउथ इंडिया में साउथ इंडियन खाइए आप। बस भी काफ़ी अच्छी थी, इट्स नॉट सो लग्जरी, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थी, बट फिर भी बाहर का नज़ारा बस से देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा बस से आपको महसूस होगी। रश नहीं है बस में, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बट अगर रश है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट रश का चांस नहीं है, बिकॉज हर आधे घंटे बाद आपको बस मिल जाती है रामेश्वरम से मदुरई जाने के लिए। सो फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है एंड क्वाइट रीजनेबल एज वेल। ओनली इन 136 रुपीज़ यू कैन ईजीली वर्क। Alright, so I have reached to मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशंस हियर इन मदुरई। बहुत ही फेमस मंदिर है और नक्काशी जो उसके वॉल्स पे की गई है, दैट इज़ सो अमेजिंग, बहुत ही मेस्मराइजिंग है। कितने इसे किया होगा, ये इतने सारे मूर्ति बने हुए हैं वॉल पर, इट लुक्स सो अमेजिंग। सो but here Madurai, I have travelled from Rameshwaram and I travelled by roadways bus, which took me hardly 136 rupees and it took me 3.5 hours. So 136 रुपये और 3.5 घंटे के आसपास लगे रामेश्वरम से मदुरई पहुंचने के लिए। बस स्टैंड से मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है अराउंड 4 किलोमीटर के आसपास है, 4.5 किलोमीटर। तो वहाँ से भी आपको डायरेक्टली बस मिल सकती है यहाँ के लिए, विच टेक्स हार्डली 15 रुपीज़, बट इफ़ विल गो बाई ऑटो एंड ऑल इट विल टेक अराउंड 150 रुपीज़, 150 रुपीज़। तो बस स्टैंड से आप डायरेक्टली बस ले सकते हैं। 77B बस का नंबर है, जो सीधे बस स्टैंड से मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के पास आपको उतारेगी और 15 रुपये सिर्फ आपको देने पड़ेंगे। सो इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ बजट ट्रिप एंड if you have time, of course, so bus is definitely a good option, and you don't find much rush as well, because that's starting from bus stand only, so you won't find much rush. So here we have reached to Meenakshi Amman temple. It is now closed because it's 1:30 by my watch, and the timings are 4:30 to 12 p.m. so it is closed now. Evening it is going to start at 4 o'clock, so at that time we'll try to visit this. I have had enough time, so I had gone for lunch in typical South Indian style, and I enjoyed my lunch before I entered into temple. Okay, so finally Meenakshi Amman temple darshan is over. There was a huge rush because I was right in the line at 4 o'clock when it was open, and it took no more than half an hour to complete or to get the darshan. So interior if I talk about, it's very good, especially अगर आप नक्काशी देखना पसंद करते हैं, अगर आप आर्ट वर्क पसंद करते हैं, तो it is a must come place, because इतने खूबसूरती से नक्काशी किया गया है, इतने अच्छे अच्छे मूर्ति बनाए हुए हैं वॉल पे, पिलर्स पे, and it all looks so fabulous, so fascinating. Rest of course if you believe in the god, so अंदर एक शिवा टेम्पल है, शिवा स्टैचू है, तो हमने उसका दर्शन किया। देन मीनाक्षी अम्मा टेम्पल ऑफ कोर्स, दैट आल्सो वी हैव डन। सो देयर आर अंदर ऑफ कोर्स देयर आर 2 लाइन्स इनसाइड, तो 2 लाइन है अंदर, एक जो पैसे लेके, सो देयर इज़ 100 रुपीज़ टिकट, इसमें आपको थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाएगा इफ़ देयर इज़ अ रश, एंड दूसरा लाइन है ऑफ कोर्स फ्री दर्शन वाला। सो आई हैव प्रेफर्ड टू गो विद द टिकट लाइन। 100 रुपीज़ वॉज टिकट, and then 100 rupees ticket for the Meenakshi Amma darshan and 50 rupees for
और शिव जी टेम्पल दर्शन। तो ये दोनों ही दर्शन मैंने किए, पैसे दे के ही किए, बिकॉज आई डेंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन द लाइन। अदरवाइज यू कैन टेक योर डिसीजन ऑफ कोर्स, बट इट्स वेरी गुड, मस्ट विजिट, स्पेशली इफ़ यू आर लवर ऑफ आर्ट वर्क। बहुत ही खूबसूरत नक्काशियाँ हैं अंदर। एंड देर इज़ वन प्लेस कॉल्ड 1000 टेम्पल प्लेस, so 1000 pillar place, so there are 1000 pillars. I didn't find something big sighted there, but of course it is there, so I have gone there as well. Hardly 5 rupees ticket is there. So that's it from Meenakshi Amman temple and Madurai. Now I am heading towards Kanyakumari. I'll go to find out my options, of course, whether bus or train, whichever is available and will be suitable to me. Chalo, we'll meet in Kanyakumari. Okay, bye.